Good morning, students. Myself Minakshi, your bio teacher. Yes, in previous class we have discussed about the connective tissue, that is fluid and skeletal. So today we're going to discuss about the loose areolar tissue, dense areolar tissue and adipose tissue. ठीक है. सो जो लूज एरियोला टिश्यूज़ हैं, द सेल्स ऑफ दीज एरियोला टिश्यू आर नॉट टाइटली पैक्ड. सो यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होंगे, लूजली बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक होंगे. एंड जो लूज एरियोला टिश्यू है, इनकी मैट्रिक्स में ना दो तरह के फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे. इट कंटेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर वाइट एंड येलो. सो जो वाइट फाइबर्स हैं दे फॉर्म कोलेजन एंड येलो फाइबर्स दे फॉर्म इलास्टिन. So what is the basic function of this areolar tissue, loose areolar tissue? Basically they connect muscle with the skin, right? So let us start with these areolar tissues. So areolar tissue, the connective tissue found between the skin and the muscle, around the blood vessels, nerves and in the bone marrow. So I told you जो loose connective tissues हैं हमारे areolar के, they connect skin and the muscles. So loose areolar tissue is further having two different types of fiber, that is white and yellow. Clear beta? Next, now these areolar tissue is the second one, the dense areolar tissue has different types of segmentations. One is tendon and the other one is ligament. वन इज़ टेंडन एंड द अदर वन इज़ लिगामेंट. बेसिकली जो टेंडन्स होती हैं बेटा वो हमारे बोन को मसल से जोड़ती हैं. ठीक है. टेंडन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डेंस एरियोला टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू द मसल. And what about ligaments? Ligaments are the special tissue, dense areolar tissue which connect bone to bone. Clear beta? So in loose areolar tissue we have discussed about the cells which are not lightly packed. Second thing, matrix has two different types of fibers. One is white, the second is yellow. Here in dense areolar, जहाँ पे cells tightly pack होते हैं, so and it is characterized into two, tendon and ligament. Tendon connects muscle to bone, ligament connects bone to bone. Clear beta? Now next, the number 5th in connective tissue is adipose tissue. These adipose tissues are found below the skin. They are basically found below the स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. इनका जो मेन फंक्शन होता है वो है फैट स्टोरेज. क्या है इनका मेन फंक्शन? इनका मेन फंक्शन है फैट को स्टोर करना. एंड बिकॉज ऑफ सेविंग दिस और स्टोरेज ऑफ फैट इन आवर बॉडी बिलो द स्किन, दे एक्ट एज अ इंसुलेटर. ठीक है. इंसुलेटर का मतलब आपको सर्दियों में ठंड लगती है ना, सो बेसिकली ये जो फैट हमारे स्किन के अंदर जो डिपॉजिट हो रहा है, स्टोर हो रहा है इन एडिपोज साइट में, उनकी वजह से आपको थोड़ा सा इंसुलेशन मिलता है. क्लियर बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज connective tissue lecture. So let us start with the next one, that is muscular tissue. क्लियर. सो मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं हमारे बॉडी के अंदर किससे बने हुए हैं? मसल फाइबर से बने हुए हैं. किससे बने हुए हैं? मसल फाइबर से. एंड दीज मसल फाइबर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. दिस मसल फाइबर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. अब इन मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराते हैं. ठीक है. Actin and myosin. These two different types of protein which is being found in the muscles. One is actin, which is not given in your NCERT. Just make a note of it. One is actin. The second one is myosin. So muscles actually, along with the bone, they help in the movement. So they contain special proteins, contractile proteins. One is actin, the second one is myosin. So ये muscles जो होती हैं आपस में contract करती हैं, relax करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? Movement. So to the bones and help in the body movement. Clear बेटा? Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands and the striation when strained appropriately. क्लियर. सो जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इन मसल्स के अंदर हमें कुछ लाइट और डार्क कलर के बैंड नज़र आते हैं. इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि मसल के अंदर क्या होती हैं? स्टेरिएशंस होते हैं, बैंड होते हैं, धारियाँ होती हैं. सो अगर हम उनको प्रॉपरली स्टेन करते हैं तो ये स्टेरिएशन हमें दिखाई देंगी. इसीलिए इस तरह की मसल्स को जिनके अंदर ये लाइट और डार्क बैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरिएटेड मसल्स. उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिएटेड मसल्स. ये जो सेल्स होते हैं ऑफ दिस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, दे आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल
अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो डिवीजन आई है हमारे पास, जो मसल्स जिनके अंदर लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, जिनके अंदर स्टेरिएशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेरिएटेड मसल। द सेकेंड थिंग, ये जो मसल्स हैं ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। यू कैन से कि फॉर एग्जांपल ये जो स्टेरिएटेड मसल्स हैं ये वॉलेंटरली कंट्रोल में होती हैं, और जो दूसरी मसल्स हैं जो बेसिकली जो हमारे हार्ट इसमें प्रेजेंट हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं, क्लियर, ये क्या है, इनवॉलेंट्री, ये आपके कंट्रोल से काम नहीं करती हैं, ये अपने आप काम करती हैं। जैसे आपका पलकों का झपकना, आपको छींक आना, ऑल दीज आर involuntary, which is not under your control. So we cannot really start them to stop them simply by wanting to do so. हम उनको ऐसा नहीं है कि हमने बोला बंद हो जाओ तो वो बंद हो जाएंगे, हम कहेंगे चालू हो जाओ तो चालू हो जाएंगे, नहीं। These are called smooth muscles, or you can say involuntary muscles control such movements. Clear बेटा? So ये जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर हो रही हैं जिनको हम involuntary movement बोल रहे हैं, तो ये कौन सी मसल करा रही है, involuntary muscles. Clear? They are found in the iris of the eye, in the ureters, in the bronchi of lungs. The cells are long with the pointed end. So you can say they are spindle shaped and uninucleate. पीछे हमने स्टेरिएटेड जो मसल्स थी उनमें देखा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएट है। ये जो है नॉन स्टेरिएटेड मसल्स होती हैं, इनके अंदर स्टेरिएशंस नहीं होती हैं, इसीलिए इनको अनस्टेरिएटेड मसल भी कहा जाता है। दूसरा, ये इनवॉलेंट्री है, वो वॉलेंट्री थी, वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं कि हमें जो काम करना है, चलना है, दौड़ना है, डांस करना है, बोलना है, वो वॉलेंट्री मसल्स है। यहाँ पर जो मसल्स हैं जो यूनिन्यूक्लिएट हैं, दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर अनस्टेरिएटेड, इनमें वो डार्क और लाइट बैंड नहीं होते हैं। तो दिस वॉज द सेकेंड वन। नंबर 3, कार्डियाक मसल्स। ये जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करती हैं। दूसरा, ये कार्डियाक नाम इसीलिए आया क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये सिलेंड्रिकल भी हैं, ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएट है। ये जो कार्डियाक मसल है, इट शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द मसल्स, द स्टेरिएटेड मसल्स एज वेल एज अनस्टेरिएटेड मसल्स की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे है, ठीक है। एक तो ये इनवॉलेंट्री है, हमारे यहाँ कंट्रोल में नहीं है। दूसरा सिलेंड्रिकल है जो कि हमारी स्टेरिएटेड मसल्स भी थी, ठीक है। ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है जो कि हमारी यहाँ पे अनस्टेरिएटेड मसल्स थी। सो आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क यही है कि ये जो 3 डिफरेंट तरह की जो मसल्स मैंने आपको बताई हैं, इनकी बेसिकली इनका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। बुक में भी दे रखा है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट एंड मेक अ नोट ऑफ इट, दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स एंड कंपेयर देयर चार्ट, कि तीनों की अलग अलग जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से कितनी मिलती हैं। क्लियर बेटा? इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू डील अबाउट द नर्वस सिस्टम बेसिकली। सो नर्वस सिस्टम और यू कैन से नर्वस टिश्यू, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ द 3 एनिमल टिश्यू। द फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड वन इज द muscular tissue. Now fourth is the nervous tissue which we're going to deal in the next class. So that's all for today. Stay home, stay safe.